آپ اس عدالت کو بتانا چاہیں گی کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے مہنگا آرکیٹیکچرل کالج، اسکالرشپ پہ ہوں۔ ورک شاپ سے کتنی آمدنی ہو جاتی ہے اسلم صاحب کی؟ مائی لارڈ، نوٹس لیا جائے۔ I apologize, Your Honor. کیس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد عدالت مسمی اسلم اس عدالت کو ٹھوس ثبوت پیش کرے۔ عدالت 2 ہفتوں کے لیے برخاست کی جاتی ہے۔ طرف بابا ہے اور دوسری طرف محبت، اس نے اپنے بابا کے خلاف جا کے کورٹ کو سارے ثبوت دے دی۔ اس انکل کا ماضی سن کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ پیا کے خلاف ویڈیو بھی انکل نے تو چت بھی ہماری اور پٹ بھی ہماری۔ 50 کروڑ کا کیس فائل کروں گا، دیوالیہ نکل جائے گا اس کا۔ ان بڑے لوگوں کے ہاتھ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے کیا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کورٹ کا ڈرامہ نچایا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ قوم دوغلا ہے اور قوم دھوکے باز۔ نہ گواہ نہ ثبوت، اور آپ کورٹ میں کیس لڑنے آئے۔ کورٹ کے ڈیکورم کا آپ دونوں خیال رکھیں، سوری مائی لارڈ۔ گریز کریں آپس میں بات کرنے سے۔ سوری سر۔ استغاثہ کی بحث سننے کے بعد سیٹ جج صاحب، دعویٰ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ کیس کی تمام کارروائی یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے، سیٹ جج صاحب، کوئی گواہ ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت ہے۔ اس مقدمے کا ابھی ایک گواہ باقی ہے۔ اس کھیل کے پرانے کھلاڑی معلوم ہوتے ہیں، یہ دونوں باپ بیٹی کے باپ نے سیٹ داؤد پہ کیس کر دیا۔ معاملہ صرف چند ٹکوں کا ہے مائی لارڈ۔ پہلے بیٹی نے کھڑپ پتی کے معصوم بیٹے کو، وہ انکل کا کوئی پرانا ساتھی تھا جس نے سب کچھ دیا، کیا وہ گواہی دینے کے لیے آ سکتا؟ جو اس وقت پولیس میں نوکری کرتا تھا، آگے نکل گیا کہ سب کچھ بھول گیا۔ ہاں میں اس ٹائم پر لکھ رہا تھا، ثبوت مٹانے کے لیے شاید استعمال کیا تھا، اسی چکر میں اس نے یہ سب اپنے پاس رکھ لیا کہ شاید انکل کو کبھی نہ کبھی بلیک میل کرے گا۔ جی مجھے بولا مجھ سے لینے آنا۔ میں کامران بات کر رہا ہوں۔ بشیر انکل کو مرے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ عالیار کتنے دن سے مجھ سے ملا نہیں ہے۔ اس کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ ہوتا کہاں ہے آج کل؟ یہ سے کہا تھا کہ اسے لے کے ملک سے باہر چلی جائے۔ کیوں، کیا ہوا؟ آج کل اتنا بجھا بجھا چپ چاپ سا رہنے لگا ہے۔ پوری کوشش کی تھی میں نے داؤد سے کہا تھا کہ اسے لے کے ملک سے باہر چلی جائے۔ اسے دور لے جاؤں، لیکن یہ لڑکی پیا پیا اس کا نام سنتا ہوں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے میرا۔ جی کرتا ہے کہ جان سے مار دوں اسے میں۔ مروانے کی کوشش کی تو تھی بابا آپ نے۔ سے کہا تھا کہ اسے لے کے ملک سے باہر چلی جائے۔ علی پلیز کمرے میں جاؤ اپنے۔ اس کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ میرے اپنے بیٹے کو سچ لگ رہا ہے، کا نام سنتا ہوں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے میرا۔ وہی دبائی بھی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کر جانا پڑے گا۔ میں ساول کے ساتھ جاؤں گا۔ بس اتنا بتاؤ کہ کرنا کیا ہے۔ پیا اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ابا پیا جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہ میری لگائی ہوئی آگ ہے، تاکہ کسی پرانے جاننے والے سے کچھ پتہ چل جائے، اسے مجھے ہی بچانا ہوگا۔
ड्रामा सीरियल सवाल यार पिया की आने वाली अक्सात नहायत ही धमाका खेज होने वाली हैं, क्योंकि आखिरकार सुनवेल की दुआई और मेहनत रंग लाने वाली है। न सिर्फ असलम और दाऊद के केस का फैसला सुनाया जाएगा, बल्कि असलम सुनवेल को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए पिया का रिश्ता भी मांग लेगा। एक तरफ दाऊद को जेल भेज दिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ सुनवेल घोड़े और बारात के साथ पिया के दरवाजे पर पहुंचेगा। मगर फी अलहाल सुनवेल की ख्वाहिशें मुकम्मल होती नजर नहीं आती, क्योंकि ये ड्रामा सुनवेल की मौत पर खत्म होने वाला है। अब सवाल ये है, आखिर सुनवेल को मारेगा कौन? क्या पिया के लिए सुनवेल की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? और वो कौन सा दुश्मन है जो सुनवेल की खुशियों को बर्बाद कर देगा? जैसे ही असलम और दाऊद के केस का फैसला सुनाया जाने वाला होता है, अलियर तमाम सबूतों के साथ अदालत पहुंच जाता है। हैरत की बात यह है कि असलम जो वहीं प्लाबा एक भी गवाह अपने हक में पेश ना कर सका, जबकि अलियर का दोस्त जो सखर से ताल्लुक भी नहीं रखता था, एक ऐसी औरत को तलाश कर लेता है जो सच जानती थी। इस बार अलियर खुद अदालत में गवाह के साथ आता है। गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर यह साबित हो जाता है कि सेठ मूसा, जो दाऊद बनकर सामने आया, असलम को झूठे केस में फंसा कर पैसे बटोरता रहा। इसने न सिर्फ असलम की बेटी पिया पर बुरी नजर डाली, बल्कि असलम की बीवी की मौत का सबब भी बना। जज फैसला सुनाते हैं कि सेठ दाऊद को 10 साल कैद की सजा दी जाती है। ये फैसला सुनते ही दाऊद अलियर को धमकी देता है, तुमने एक लड़की के लिए अपने बाप से गद्दारी की है, अब देखना मैं तुम सब की जिंदगियां कैसे बर्बाद करता हूं। पुलिस सेठ मूसा और नसरी को गिरफ्तार कर लेती है। बाद अज़ा पिया अपने वालिद असलम और सुनवेल के साथ घर वापस आती है। जकिया घबरा कर पूछती है कि क्या केस हार गए, तो पिया बताती है कि सब कुछ उनके हक में हो गया है और सेठ मूसा को सजा हो चुकी है। असलम कहता है, ये सब तुम और सुनवेल की वजह से मुमकिन हुआ, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी पिया की जिम्मेदारी सुनवेल को सौंपना चाहता हूँ। सुनवेल जवाब देता है, अगर पिया की रजा शामिल है तो मैं ये जिम्मेदारी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। पिया भी इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर देती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अलियर को खबर मिलती है कि पिया की शादी सुनवेल से तय हो गई है। वो फैसला करता है कि वो न्यूयॉर्क चला जाएगा, क्योंकि वो पिया की खुशी में रुकावट नहीं बनना चाहता। शादी वाले दिन जैसे ही सुनवेल बारात लेकर निकलता है, खबर आती है कि सेठ दाऊद जेल से फरार हो चुका है। अलियर को फौरन अंदाजा हो जाता है कि पिया खतरे में है और वो सीधा पिया के घर पहुंचता है। वो पिया को खबरदार करता है कि फौरन यहां से चली जाए, मगर इसी लम्हे सेठ दाऊद फायरिंग कर देता है। सुनवेल पिया को बचाने के लिए आगे आता है और गोलियों का निशाना बन जाता है। सेठ दाऊद कई फायर करके फरार हो जाता है और सुनवेल वहीं दम तोड़ देता है। पिया रोते हुए कहती है, सुनवेल, तुमने मेरी खातिर अपनी जान दे दी। मुमकिन है कि मरते वक्त सुनवेल पिया को अलियर से शादी करने की वसीयत करे। ड्रामा इस अंजाम पर खत्म हो सकता है कि पिया और अलियर की शादी हो जाती है, जबकि सेठ दाऊद दोबारा गिरफ्तार होकर सुनवेल के कत्ल में मजीद सख्त सजा पाता है। अगर किसी ने सबसे बड़ा नुकसान उठाया तो वो सिर्फ सुनवेल है। फायरिंग के बाद पूरे घर में कोहराम मच जाता है। हर तरफ चीखो पुकार, शोर और खौफ की फिजा छा जाती है। सुनवेल जमीन पर खून में लत-तड़ा होता है। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही होती है। पिया इसके सर को अपनी गोद में रखकर बुरी तरह रो रही होती है। सुनवेल, आंखें खोलो प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो, आज तो हमारी शादी थी। सुनवेल के होंठ हिलते हैं, वो मुश्किल से सांस लेता है। अलियर, असलम, जकिया सब सकते में खड़े होते हैं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि खुशियों वाला दिन मातम में कैसे बदल गया। सुनवेल कमजोर आवाज में पिया से कहता है, पिया, रोना नहीं, मुझे अफसोस नहीं है, मैं खुश हूं कि मैं तुम्हें बचा सका। पिया रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं। सुनवेल की आंखों में नमी आ जाती है। वो आखिरी बार अलियर की तरफ देखता है और कहता है, अलियर, मैं जानता हूं तुम पिया से सच्ची मोहब्बत करते हो। अगर मैं ना रहूं तो इसका ख्याल रखना, इसे कभी तन्हा मत छोड़ना। ये सुनकर अलियर की आंखें भर आती हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, भाई, ऐसा मत कहो, आपको कुछ नहीं होगा। मगर अगले ही लम्हे सुनवेल की सांस टूट जाती है। इसका हाथ पिया के हाथ से ढलक जाता है। पिया की दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंजती है। सुनवेल, हर आंख अश्क बार होती है। जकिया बेहोश हो जाती है। असलम दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और अलियर जमीन पर नजरें झुकाए खामोश खड़ा रह जाता है। बारात के ढोल, खुशियों की आवाजें, सब कुछ एक लम्हे में खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। पूरा इलाका सेल कर दिया जाता है। मालूम होता है कि सेठ दाऊ वाकई पिया को मारने आया था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसने अपनी दुश्मनी का बदला सुनवेल से ले लिया। सुनवेल का जनाजा पूरे शहर में खामोशी से उठाया जाता है। कोई ढोल नहीं, कोई खुशी नहीं, बस आंसू, सिसकियां और एक सच्चा इंसान जो अपनी मोहब्बत की खातिर जान दे गया।
पिया सफेद कपड़ों में खामोश खाली नजरों से सब कुछ देख रही होती है। वो किसी से बात नहीं करती, ना रोती है, ना चीखती है, जैसे इसकी आवाज, इसके एहसासात सब दफन हो गए हों। अलियर दूर खड़ा इसे देखता रहता है। इसके दिल में हजारों सवाल, हजारों पछतावे होते हैं। अगर मैं पहले आ जाता, अगर मैं पिया को जबरदस्ती ले जाता, तो शायद सुनवेल जिंदा होता। कुछ दिन बाद खबर आती है कि सेठ दाऊद दोबारा गिरफ्तार हो चुका है। इस बार इस पर सिर्फ झूठे केस ही नहीं बल्कि सुनवेल के कत्ल का इल्जाम भी साबित हो जाता है। अदालत इसे उम्र कैद की सजा सुना देती है और अब इसके लिए फरार का कोई रास्ता नहीं बचता। वक्त गुजरता है मगर पिया का दुख कम नहीं होता। वो अक्सर सुनवेल की बातें याद करती है, इसकी कुर्बानी, इसकी खामोश मोहब्बत और वो वदा जो वो आखिरी सांस में कर गया था। एक दिन अलियर हिम्मत करके पिया से बात करता है। पिया, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, मगर सुनवेल यही चाहता था कि तुम खुश रहो। पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी खुशी की कीमत किसी की जान होगी। अलियर आहिस्ता से कहता है, तुम कसूरवार नहीं हो। सुनवेल एक हीरो था और हीरो कभी नहीं मरते। कहानी यहाँ एक खामोश मोड़ लेती है। क्या पिया सुनवेल की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगी? क्या वो अलियर के साथ नई जिंदगी शुरू कर पाएगी? सुनवेल की याद हमेशा इसके दिल पर बोझ बनी रहेगी। सुनवेल की लाश घर के सहन में रखी होती है। सफेद चादर के नीचे वही सुनवेल जो कुछ घंटे पहले दुल्हा बनकर निकला था। बारात वाले कपड़े अभी तक खून से तर हैं। घोड़ा बाहर बंधा खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, मगर इसका मालिक अब कभी वापस नहीं आएगा। पिया एक कोने में जमीन पर बैठी है। इसके हाथों में सुनवेल की वो अंगूठी है जो इसने शादी के लिए खरीदी थी। वो अंगूठी बार बार देखती है, जैसे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब हकीकत है। ज़किया होश में आती है तो सबसे पहला सवाल यही करती है, सुनवेल कहाँ है? मेरी बहू कहाँ है? जब इसकी नज़र लाश पर पड़ती है तो वो चीख मारकर इस पर गिर पड़ती है। मेरा बेटा नहीं था वो, मेरा साया था, मेरा मुहाफिज था। असलम आगे बढ़ता है मगर इसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी इसे दी थी, मैंने इसे मौत के हवाले कर दिया। ये जुमला कहते ही असलम टूट जाता है। मर्दांगी, वकार सब जमीन पर बखर जाता है। अलियर एक तरफ खड़ा है। इसके चेहरे पर अजीब सा सुकूत है, ना आंसू ना आवाज, बस अंदर ही अंदर खुद को मार रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं पहले आ जाता, अगर मैं न्यूयॉर्क ना जाता। सुनवेल की मां पिया के पास आकर बैठती है। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस दर्द है। बेटी, मेरा बेटा तुम्हें बचाते हुए मरा है, इसलिए खुद को कभी कसूरवार मत समझना। पिया पहली बार बोलती है मगर इसकी आवाज जैसे किसी कब्र से आ रही हो। आंटी, मैंने इसे कभी वो मोहब्बत नहीं दी जिसका वो हकदार था, फिर भी इसने मेरी खातिर जान दे दी। जनाजे का दिन आता है, पूरा इलाका उमड़ आता है। लोग कहते हैं ऐसा लड़का दोबारा नहीं आएगा। सच्चा आशिक था, अपनी मोहब्बत के लिए मर गया। जब सुनवेल को कब्र में उतारा जाता है तो पिया बेहोश हो जाती है। अलियर इसे थाम लेता है। पहली बार वो इसे यूं थामता है, मगर ये वो लम्हा नहीं था जिसका इसने ख्वाब देखा था। दिन गुजरते हैं, घर में खामोशी बसी रहती है। शादी के जोड़ों की जगह सफेद चादरें हैं। पिया बोलना तकरीबन छोड़ देती है, ना हंसती है ना रोती है, बस खिड़की में खड़ी रहती है जैसे किसी का इंतजार हो। एक रात पिया सुनवेल की आवाज सुनती है, फ्लैशबैक। पिया, अगर मैं ना रहूं तो जिंदगी को रोकना मत। अलियर अच्छा इंसान है। पिया चौंक कर उठ बैठती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुनवेल, तुम मुझे क्यों इतना अकेला छोड़ गए? उधर जेल में सेठ दाऊद तागलों की तरह चीख रहा होता है। मैंने इसे नहीं मारना था, मैं तो पिया को खत्म करना चाहता था। अदालत में फैसला आता है, सेठ दाऊद को उम्र कैद, सुनवेल के कत्ल पर मजीद सख्त सजा। अब इसके लिए बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। कई महीने बाद अलियर दोबारा पिया के घर आता है। इस बार ना मोहब्बत के लिए ना रिश्ते के लिए, बस एक वदा पूरा करने। मैं सुनवेल का वदा निभाना चाहता हूँ, तुम्हारी हिफाजत का। पिया आहिस्ता से कहती है, मैं अभी सुनवेल के बगैर सांस लेना सीख रही हूँ, मोहब्बत बाद में आएगी। यहाँ कहानी एक आखिरी मोड़ लेती है। क्या पिया वाकई सुनवेल की ख्वाहिश पूरी करेगी? क्या अलियर कभी इसकी जिंदगी में अपनी जगह बना पाएगा? सुनवेल की कुर्बानी हमेशा उन तीनों के दरमियान खड़ी रहेगी। फायरिंग की आवाज गूंजकर खामोश हो चुकी है। सहन में अजीब सा सन्नाटा है। वही सहन जहां कुछ देर पहले मेहंदी, कहकहे और शादी की बातें थीं, अब वहां सिर्फ खून, खौफ और सन्नाटा बचा है। सुनवेल जमीन पर पड़ा है। इसकी आंखें आधी खिली हैं, जैसे अभी कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज इसका साथ छोड़ चुके हों। इसका हाथ पिया के हाथ में है, मगर गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही है। पिया कांपती हुई आवाज में बोलती है, सुनवेल,
मेरी तरफ देखो प्लीज, एक बार बस। सुनवेल की पलकें हिलती हैं। वो मुश्किल से सांस लेता है। इसके होंठ हिलते हैं मगर आवाज बमुश्किल निकलती है। सुनवेल, पिया, अरना मत, मैं हूं ना। पिया रोते रोते इसके सीने पर झक जाती है। तुम थे, अब क्यों जा रहे हो? आज तो हमारी शादी थी। सुनवेल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। मैं दुल्हा ही हूं, बस अल्लाह के घर जा रहा हूं। ये सुनते ही पिया चीख मारती है। नहीं, ऐसे मत कहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उधर अलियर दरवाजे पर खड़ा ये मंजर देख रहा होता है। इसकी टांगें सुन हो चुकी हैं। वो एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। इसकी आंखों में आंसू हैं, मगर वो खुद को मजबूत रखने की नाकाम कोशिश कर रहा है। असलम आगे आता है, सुनवेल के पास घुटने टेक कर बैठ जाता है। बेटा, आंखें खोलो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी थी। मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं दिया था। सुनवेल बड़ी मुश्किल से असलम की तरफ देखता है। चचा, फिक्र मत करे, पिया महफूज है, यही काफी है। अचानक सुनवेल के जिस्म में झटका आता है। इसकी सांस टूटने लगती है। पिया चीख कर कहती है, नहीं, नहीं, कोई डॉक्टर बुलाओ। अलियर फौरन फोन निकालता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुनवेल की आंखें एक आखिरी बार पिया को देखती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। खामोशी, ऐसी खामोशी जो कान फाड़ दे। पिया सुनवेल के सीने पर सर रखकर चीखती है, सुनवेल, उठो, मैंने हाँ कही थी ना, अब उठो। कोई जवाब नहीं आता। ये मान लेने का लम्हा है कि सुनवेल अब नहीं रहा। सुनवेल की मौत के बाद पूरा घर जैसे सोग में डूब गया। वही घर जहां चंद घंटे पहले शादी की बातें हो रही थीं, अब वहां खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज तक सुनाई देती थी। सुनवेल की मैयत सहन में रखी थी, सफेद चादर में लिपटी हुई, और हर आने वाला यही कह रहा था कि ऐसा लड़का दोबारा पैदा नहीं होगा। पिया एक कोने में बैठी थी, इसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो सब कुछ देख कर भी कुछ देख नहीं पा रही हो। इसके हाथों में सुनवेल की अंगूठी थी, जिसे वो बार बार मुट्ठी में बंद कर लेती, जैसे इस तरह सुनवेल को वापस बुला लेगी। जनाजे के वक्त जब सुनवेल को कब्र में उतारा गया तो पिया की हालत मजीद खराब हो गई। इसकी टांगें जवाब दे गईं और वो वहीं बैठ गई। लोगों ने इसे संभाला, मगर वो बस यही कहती रही कि सुनवेल ने वादा किया था कि वो इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। कब्र की मिट्टी जब सुनवेल पर पड़ी तो पिया को यूं लगा जैसे वो मिट्टी इसके दिल पर भी डाली जा रही हो। इस दिन के बाद पिया ने बोलना तकरीबन छोड़ दिया। वो ना किसी से बात करती, ना किसी सवाल का जवाब देती, बस अक्सर खिड़की के पास खड़ी रहती और खाली आंखों से बाहर देखती रहती, जैसे सुनवेल को वापस आते देख लेगी। दिन गुजरते गए, मगर दुख कम होने के बजाय और गहरा होता चला गया। असलम खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, मगर हर बार इसे यही लगता कि इसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो बार बार खुद से यही कहता कि अगर इसने जल्दबाजी में शादी का फैसला न किया होता तो शायद सुनवेल आज जिंदा होता। जकिया अक्सर रातों को उठकर रोने लगती और पिया को देखकर बस यही दुआ करती कि अल्लाह इस बच्ची को हौसला दे दे। अलियर उन सब के दरमियान सबसे ज्यादा खामोश था। वो पिया के सामने आने से कतराता था, क्योंकि इसे लगता था कि पिया की हर आंख में सुनवेल की मौत का इल्जाम इसी पर लिखा है। इसे बार बार याद आता कि इसने पिया को वहां से जाने को कहा था, मगर वो खुद इसे बचा ना सका। कई रातें इसने जाग कर गुजारी, ये सोचते हुए कि अगर इस दिन वो चंद लम्हे पहले पहुंच जाता तो शायद कहानी का अंजाम कुछ और होता। कुछ दिन बाद अदालत की कार्रवाई मुकम्मल हुई और सेठ दाऊद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार इस पर सिर्फ झूठे मुकदमात ही नहीं बल्कि सुनवेल के कत्ल का इल्जाम भी साबित हो गया। अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दी। ये खबर घर तक पहुंची, मगर पिया के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। इसके लिए अब कोई सजा, कोई इंसाफ सुनवेल को वापस नहीं ला सकता था। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए। घर में जिंदगी तो चल रही थी, मगर वो कहीं रुक सी गई थी। पिया अब भी वही सफेद कपड़े पहने रखती, खामोश, संजीदा और थकी हुई। एक दिन वो सुनवेल की कब्र पर गई। इसने पहली बार दिल खोल कर बात की। इसने कहा कि वो कभी नहीं चाहती थी कि इसकी खुशी किसी की जान ले ले। इसने सुनवेल से मुआफी मांगी कि वो इसकी मोहब्बत को समझ ना सकी, मगर अब हर लम्हा वो मोहब्बत इसके दिल में जिंदा है। इसी दिन पिया को सुनवेल की वो बात याद आई जो इसने आखिरी लम्हों में कही थी कि अगर वो ना रहे तो पिया को जिंदगी रोकनी नहीं चाहिए। ये ख्याल पिया के दिल में कांटे की तरह चुभता रहा। वो खुद से लड़ती रही कि क्या वो वाकई सुनवेल की ख्वाहिश पूरी कर पाएगी, सारी उम्र इसी दुख में गुजार देगी। अलियर एक दिन हिम्मत करके पिया के पास आया। इसने कोई वदा नहीं किया, कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया, बस इतना कहा कि वो सुनवेल का कर्ज उतारना चाहता है, पिया की हिफाजत करके, इसके साथ खड़े रहकर। पिया ने पहली बार इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना मोहब्बत, बस एक थकन थी। इसने आहिस्ता से कहा कि वो अभी सुनवेल के बगैर जीना सीख रही है, फैसले करने के काबिल नहीं। यहाँ कहानी एक और मोड़ पर आकर रुकती है। पिया के दिल में सुनवेल की याद भी है और अलियर की कुर्बानी भी,
مگر اس کا دل ابھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ وقت ہی طے کرے گا کہ کیا پیا سنویل کی آخری خواہش پوری کرے گی، اس کی محبت ہمیشہ ایک ادھوری کہانی بن کر رہ جائے گی۔ وقت رکنے والا نہیں تھا، چاہے پیا کی زندگی وہی کیوں نہ رک گئی ہو۔ سنویل کو گئے کئی مہینے گزر چکے تھے، مگر اس کی کمی گھر کے ہر کونے میں زندہ تھی۔ وہ کرسی جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا، وہ دروازہ جسے وہ آہستہ سے بند کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ خاموشی بھی جو اس کے جانے کے بعد آئی تھی، سب کچھ پیا کو ہر لمحہ اس کی یاد دلاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے وقت کے ساتھ زخم بڑھ جاتے ہیں، مگر پیا کو لگتا تھا کہ وقت ہر دن اس کے زخموں کو اور گہرا کر رہا ہے۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی، اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتی کہ کیا وہ واقعی سنویل کی قربانی کی حقدار تھی؟ کیا اس نے کبھی سنویل کو وہ مقام دیا جس کا وہ مستحق تھا؟ یہ سوالات اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ وہ راتوں کو جاگتی رہتی، سنویل کی باتیں یاد کرتی اور دل ہی دل میں اس سے معافی مانگتی۔ اسلم بھی بدل گیا تھا، وہ جو ہمیشہ مضبوط نظر آتا تھا اب اکثر تنہا بیٹھا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے نادانستہ طور پر اپنی بیٹی کو ایسی آزمائش میں ڈال دیا جس کا کوئی حل آسان نہیں تھا۔ کئی بار اس نے پیا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار رک گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے الفاظ پیا کے زخموں کو اور تازہ نہ کر دے۔ علیر اس سارے عرصے میں دور ہی رہا، وہ جان بوجھ کر پیا کے سامنے کم آتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا کہ کہیں اس کی موجودگی پیا کو سنویل کی یاد اور زیادہ نہ دلا دے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ وعدہ جو سنویل نے اس سے لیا تھا وہ محض الفاظ نہیں تھا، وہ وعدہ اب اس کی زندگی کا بوجھ بن چکا تھا۔ ایک دن پیا شدید بیمار پڑ گئی، بخار، کمزوری اور مسلسل خاموشی نے اس کی حالت مزید خراب کر دی۔ زکیہ گھبرا گئی۔ اسلم نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے صاف کہا کہ بیماری جسم کی نہیں، دل کی ہے۔ اگر پیا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی تو یہ خاموشی اسے اندر سے ختم کر دے گی۔ یہ بات اسلم کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اسی شام اسلم نے علیر کو بلایا۔ اس کی آواز میں پہلی بار التجا تھی۔ اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، مگر وہ اپنی بیٹی کو یوں مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ علیر نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس نے اتنا ضرور کہا کہ وہ پیا پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا۔ کچھ دن بعد پیا خود علیر کے پاس آئی۔ یہ پہل پیا کی طرف سے تھی، جو سب کے لیے حیران کن تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اب اکیلے نہیں رہ سکتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سنویل کو بھول چکی ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ سنویل اس کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ علیر نے خاموشی سے یہ سب سنا اور بس اتنا کہا کہ وہ اس سچ کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہے۔ پیا کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف سنویل کی یاد، اس کی قربانی، اس کی محبت، اور دوسری طرف علیر کی خاموش موجودگی، اس کا صبر، اس کا احترام۔ وہ اکثر سنویل کی قبر پر جا کر دیر تک بیٹھتی اور سوچتی کہ اگر سنویل واقعی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کیا چاہے گا؟ کیا وہ اسے یوں ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہے گا دوبارہ جیتے ہوئے؟ آہستہ آہستہ پیا نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ وہ پھر سے بات کرنے لگی، پھر سے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگی، مگر اس کی مسکراہٹ میں اب بھی اداسی چھپی ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ سنبھل رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بس جینا سیکھ رہی تھی، خوش ہونا نہیں۔ کہانی اب ایک نازک موڑ پر آ چکی تھی۔ پیا جانتی تھی کہ اسے ایک دن فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو وہ ساری زندگی سنویل کی یاد کے ساتھ تنہا گزار دے، پھر سنویل کی خواہش کے مطابق آگے بڑھے۔ مگر یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ دونوں راستوں میں درد شامل تھا۔ یہاں تک آ کر کہانی ایک خاموش سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا پیا واقعی سنویل کی قربانی کو زندگی میں بدل پائے گی؟ اس کا دل ہمیشہ دو حصوں میں بٹا رہے گا۔ وقت کے ساتھ پیا کی خاموشی میں ہلکی سی حرکت آنے لگی تھی، مگر اس کا دل اب بھی وہی رکا ہوا تھا جہاں سنویل نے آخری سانس لی تھی۔ وہ جینا سیکھ رہی تھی، مگر دل سے نہیں، بس ذمہ داری کے تحت۔ اسے ہر روز یہ احساس ہوتا کہ سنویل کی قربانی کوئی عام قربانی نہیں تھی، وہ ایک ایسی محبت تھی جو بدلے میں کچھ نہیں مانگتی، حتیٰ کہ زندگی بھی نہیں۔ ایک دن پیا نے خود اسلم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، آنکھیں جھکی ہوئیں، مگر آواز میں پہلے سے زیادہ ٹھہراؤ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اب بھاگنا نہیں چاہتی، نہ ماضی سے اور نہ مستقبل سے۔ وہ جانتی ہے کہ سنویل واپس نہیں آ سکتا، مگر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ سنویل کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ساری عمر ایک زندہ لاش بن کر جیے۔ اسلم نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ایک فیصلہ پہلے ہی کر کے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اسی رات پیا نے سنویل کی قبر پر جا کر آخری بار دل کھول کر بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ اسے بھول نہیں سکتی، نہ کبھی بھولے گی، مگر وہ اس کی قربانی کو برباد بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اعتراف کیا کہ سنویل کی محبت نے اسے یہ سکھایا کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کو جینے کا موقع دینے کا نام بھی ہے۔ اس لمحے پیا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، مگر وہ فیصلہ خوشی سے نہیں، ذمہ داری سے لیا گیا تھا۔ چند دن بعد علیر کو پیا نے خود بلایا۔ اس ملاقات میں کوئی وعدے نہیں تھے، کوئی خواب نہیں تھے، بس سچ تھا۔
पिया ने साफ कहा कि वो सुनवेल की जगह किसी को नहीं दे सकती और ना कभी देगी। सुनवेल इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, इसकी बुनियाद है। अगर अलियर इस हकीकत के साथ चल सकता है तो वो आगे बढ़ने पर सोच सकती है। अलियर ने बगैर किसी लम्हे की ताखीर के कहा कि वो मोहब्बत बांटने नहीं आया बल्कि निभाने आया है। वो जानता है कि सुनवेल हमेशा उनके दरमियान रहेगा और इससे कोई शिकायत नहीं। वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता एक नया रास्ता बनाना शुरू किया। पिया और अलियर के दरमियान ताल्लुक मोहब्बत से पहले एहतराम पर कायम हुआ। लोग बातें करते रहे, सवाल उठाते रहे, मगर पिया अब उन सब से ऊपर आ चुकी थी। इसने सीख लिया था कि हर कहानी का अंजाम खुशी नहीं होता, मगर हर अंजाम बेमानी भी नहीं होता। आखिरकार वो दिन आया जब पिया ने दूसरी शादी के लिए हाँ कही। ना ढोल थे, ना शोर, ना बड़ी तकरीबा। एक सादा सी निकाह की तकरीब, चंद करीबी लोग और एक खामोश सा वदा। पिया ने निकाह के वक्त आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए सुनवेल को याद किया और दिल ही दिल में कहा कि वो इसके नाम को कभी मिटने नहीं देगी। अलियर ने इस लम्हे इसके आंसू देखे मगर कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि ये आंसू कमजोरी के नहीं, सच के हैं। इसी दौरान सेठ दाऊद को अदालत में आखिरी सजा सुनाई गई। सुनवेल के कत्ल ने इसकी जिंदगी हमेशा के लिए कैद में बदल दी। वो अब ना किसी का बाप था, ना सेठ, बस एक मुजरिम जिसका नाम नफरत के साथ लिया जाता था। इस खबर ने पिया को सुकून नहीं दिया, मगर एक एहसास जरूर दिया कि सुनवेल की कुर्बानी रायगा नहीं गई। ड्रामे का इख्तिताम एक खामोश मगर गहरे मंजर पर होता है। पिया एक शाम तन्हा खड़ी आसमान की तरफ देख रही होती है। अलियर कुछ फासले पर खड़ा होता है, इसे खलवत देता हुआ। पिया आहिस्ता से कहती है कि कुछ मोहब्बतें जिंदगी बन जाती हैं और कुछ जिंदगी बचाकर खुद खत्म हो जाती है। सुनवेल उन्हीं मोहब्बतों में से एक था। कहानी ये नहीं कि पिया को आखिरकार मोहब्बत मिल गई, बल्कि यह है कि सुनवेल ने मरकर भी इसे जीने का हौसला दिया। वो हार गया मगर इसकी मोहब्बत जीत गई। और यही सवाल यार पिया, वक्त गुजरता गया है, जैसे दरिया खामोशी से बहता रहता है मगर अपने साथ सब कुछ बदलता चला जाता है। पिया की जिंदगी में अब नज्म था, मगर वो नज्म खुशी से नहीं बल्कि समझौते से भरा हुआ था। अलियर के साथ इसका रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा था, मगर इस मजबूती में जज्बात की शिद्दत नहीं बल्कि एतमाद की खामोश डोर थी। अलियर ने कभी पिया से यह मुतालिबा नहीं किया कि वो सुनवेल को भूल जाए, और यही बात पिया के दिल में इसके लिए एहतराम को मजीद गहरा करती गई। पिया ने दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया था। क्लास रूम में बच्चों की आवाजें इसे जिंदगी की तरफ खींचती थीं। बच्चे इसे मिस पिया कहकर पुकारते, मगर कभी कभी किसी बच्चे की हंसी में इसे सुनवेल की वो खामोश मुस्कुराहट सुनाई दे जाती और वो एक लम्हे के लिए रुक जाती, फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाती, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि रुक जाना जिंदगी नहीं बल्कि भाग जाना होता है। अलियर अक्सर इसे देखता और समझ जाता कि वो कहाँ खड़ी है। वो ना सवाल करता, ना शको, बस इसके साथ खड़ा रहता। कभी कभी रात के वक्त जब पिया खामोश हो जाती, अलियर आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में सुनवेल का शुक्रिया अदा करता, क्योंकि अगर वो कुर्बानी ना होती तो शायद पिया आज भी जिंदा ना होती। ये शुक्रगुजारी हसद में नहीं बदलती थी, बल्कि एक अजीब सी शराफत में ढल गई थी। असलम अब पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था, मगर इसकी आंखों में सुकून था। वो जानता था कि इसकी बेटी ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला खुद लिया है। जकिया अक्सर पिया के सर पर हाथ फेरती और कहती कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बस इंसान उनके साथ चलना सीख लेता है। पिया मुस्कुरा देती, क्योंकि अब वो ये बात समझने लगी थी। एक दिन पिया अकेली सुनवेल की कब्र पर गई। बरसों बाद पहली बार वो वहां रुकी, बैठ गई और लंबी सांस ली। इसने कहा कि वो खुश तो नहीं मगर मुतमईन है। इसने बताया कि वो सुनवेल को कभी नहीं भूलेगी, मगर अब वो इसके नाम पर रोना नहीं चाहती बल्कि जीना चाहती है। इस लम्हे इसे लगा जैसे इसके दिल पर रखा बोझ हल्का हो गया हो। इसी दिन शाम को जब वो घर लौटी तो अलियर ने बगैर पूछे इसे पानी दिया, जैसे वो सब समझता हो। पिया ने पहली बार खुद अलियर से कहा कि शायद अब वो वाकई आगे बढ़ना सीख रही है। अलियर ने कोई बड़ा जुमला नहीं कहा, बस इतना बोला कि यही काफी है। कुछ अरसे बाद एक छोटी सी खुशी ने इस घर का दरवाजा खटखटाया। पिया मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर इसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। इसे सुनवेल याद आया और वो लम्हा भी जब इसने कहा था कि अगर वो ना रहे तो जिंदगी रोकनी नहीं। पिया ने इस रात बहुत रोया, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, कबूलियत के थे। वक्त ने साबित कर दिया कि कुछ मोहब्बतें इंसान को मलती नहीं मगर इंसान को बना देती है। सुनवेल की मोहब्बत पिया की जिंदगी में एक चिराग की तरह रही, जो खूब बुझ गया मगर रास्ता रोशन कर गया। अलियर इस रास्ते पर पिया के साथ साथ चलता रहा, ना आगे ना पीछे, बस बराबर। कहानी का असल सबक यही था कि हर मोहब्बत का अंजाम साथ होना नहीं होता, मगर हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम खाली भी नहीं जाता। कुछ लोग जिंदगी में आकर मर जाते हैं और कुछ मरकर जिंदगी में रह जाते हैं। सुनवेल उन्हीं लोगों में से एक था। सुनवेल की मौत के बाद पिया की जिंदगी एक खाली पिन बन गई थी। दिन के वक्त वो सब कुछ करती, लोगों से मिलती, बातें करती, मगर रात को जब सब सो जाते तब वो अपने कमरे में बैठकर सुनवेल को याद करती। वो यादें जो कभी खुशी देती थीं, अब दर्द का सरचश्मा बन गई थीं। हर लम्हा इसके दिल को चीरता, हर याद इसे रू देती और वो खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर ये कोशिश अक्सर नाकाम हो जाती। अलियर भी अब इसके करीब आ गया था, मगर वो जानता था कि पिया का दिल अभी सुनवेल की मौत के सदमे से बाहर नहीं आया। वो कभी जोर से खुशी दुखाने की कोशिश नहीं करता, न ही मोहब्बत के दावे करता, बस खामोश रहता और पिया के साथ रहकर इसे ये एहसास दिलाता कि वो अकेला नहीं है।
लेकिन पिया के दिल में सुनवेल की यादें हर वक्त जिंदा थीं और ये यादें इसे आगे बढ़ने नहीं देती थीं। एक दिन पिया सुनवेल की कब्र पर गई। इसके हाथ लरज रहे थे और कदमों में ताकत नहीं थी। वो कब्र के पास बैठ गई और सर झुकाकर बोली, सुनवेल, तुम्हारे बगैर ये दुनिया कितनी सुनसान है। तुमने मुझे जीने का मौका दिया, मगर ये जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। इस लम्हे इसके दिल में गम और मोहब्बत की मिली जली कैफियत थी। इसने महसूस किया कि सुनवेल की कुर्बानी ने इसे जिंदा रखा, मगर इस जिंदा रहने का मतलब खुशी नहीं था। वो बस सांस ले रही थी, बगैर खुशी के। अलियर दूर खड़ा इसे देख रहा था। इसकी आंखों में दर्द था, मगर इसने कोई सवाल नहीं किया। वो जानता था कि पिया को वक्त चाहिए और ये वक्त कोई लफ्ज़ आवदा नहीं दे सकता। बस ये खामोशी ही सबसे बड़ी मदद थी। कुछ हफ्ते बाद पिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के छोटे छोटे रंग वापस आने लगे। वो दोबारा खाना पकाने लगी, बच्चों के साथ बात करने लगी, मगर इसकी मुस्कुराहट में अब भी सुनवेल की कमी महसूस होती थी। हर खुशी में वो सुनवेल को याद करती, हर कामयाबी में इसे इसकी याद आती। अलियर अब इसके करीब रहने लगा, मगर वो मोहब्बत के लिए नहीं, सिर्फ इसके साथ होने के लिए। वो जानता था कि पिया अभी सुनवेल के दुख से बाहर नहीं आई और इसे अपने दिल के फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी थी। वो पिया के दुख को समझता, इसके खामोश आंसू देखता और अपने आप को बस इसके साथ खड़ा रखता। पिया के दिल में एक दिन अचानक एहसास आया कि सुनवेल की कुर्बानी रायगा नहीं गई। इसने महसूस किया कि अगर सुनवेल जिंदा होता तो यही चाहता कि वो आगे बढ़े, जिंदगी में आगे देखे और खुद को दूसरों के हवाले ना छोड़े। ये सोचकर इसने पहली बार दिल ही दिल में वदा किया कि वो सुनवेल की याद के साथ जिएगी, इसे भूले बगैर। इसी दौरान अलियर ने भी पिया के लिए अपनी जगह बनानी शुरू की। वो जानता था कि सुनवेल की मोहब्बत और कुर्बानी किसी को नहीं भुलाने देती, मगर वो चाहता था कि पिया के दुख में एक साथी जरूर हो। वो खामोशी से इसके साथ रहता, इसके छोटे छोटे मसाइल हल करता और कभी भी इसकी यादों पर सवाल नहीं उठाता। कुछ महीने बाद पिया ने महसूस किया कि वो सुनवेल के बगैर भी जीने के काबिल हो गई है और अलियर की मौजूदगी ने इसे सुकून दिया है। वो अब जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में खुशी महसूस कर सकती थी, मगर सुनवेल का खला हमेशा इसके दिल में रहा। ये कहानी एक तरह से खत्म हुई, मगर पिया की जिंदगी में सुनवेल की याद हमेशा जिंदा रही। इसने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी और यादों के साथ जीने का नाम भी है। और अलियर, जो इस सब का खामोश साथी बन गया, इसने सीखा कि बाज मोहब्बतें सिर्फ साथ रहकर जीने के लिए होती हैं, न कि हासिल करने के लिए। सुनवेल मर गया, मगर इसकी कुर्बानी और मोहब्बत पिया की जिंदगी में हमेशा के लिए जिंदा रही। शादी के बाद हवेली में सुकून छा गया, मगर यह सुकून महज सतही था। अंदरूनी माहौल में हर किरदार की सोचें बदल रही थीं। गुलाम और सुंदरी अपने कमरे में बैठे हैं और दोनों के चेहरे पर थकन के असरात वाजे हैं, मगर दिल पर सुकून है। सुंदरी आहिस्ता से कहती है, गुलाम, आज सब कुछ खत्म हो गया, मगर मैं महसूस कर रही हूं कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। गुलाम सर हिलाता है, हाँ सुंदरी, आज हमने इक़्तिदार और खौफ से लड़ाई जीती, मगर जिंदगी की असल लड़ाइयां अभी बाकी हैं। हमने एक दूसरे के साथ वादा किया था और अब इस वादे को हर दिन जिंदा रखना होगा। दूसरी तरफ बादशाह अपनी कोठरी में बैठा है। इसकी नजर अब भी हवेली की खिड़कियों की तरफ है, जहां गुलाम और सुंदरी खुश हैं। वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है, मैंने सब कुछ खो दिया, ताकत, इज्जत, सब कुछ, और ये सब कुछ एक गुलाम के हाथों। क्या यही इंसाफ है? बेगम साहिबा खामोशी से बादशाह के करीब आकर कहती है, बेटा, ये सब तुम्हारी अपनी अना की वजह से हुआ। अब वक्त है कि तुम सुकून तलाश करो और समझो कि ताकत सब कुछ नहीं होती। बादशाह लंबे सांस के बाद सर झुकाता है। पहली बार इसे एहसास होता है कि दुनिया में इक़्तिदार के साथ साथ मोहब्बत और एहतराम की भी अहमियत है। उधर गुलाम और सुंदरी नया दिन देख रहे हैं। गुलाम कहता है, सुंदरी, आज से हम जिंदगी खुद चुनेंगे। हर फैसला हमारा, हर रास्ता हमारा, और जो कुछ भी होगा हम साथ होंगे। सुंदरी मुस्कुरा कर जवाब देती है, हाँ गुलाम, हर कदम पर। आज से कोई खौफ नहीं, कोई गुलामी नहीं, सिर्फ हम दोनों की मोहब्बत और हमारी सच्चाई। गांव वाले भी हवेली के सहन में आ जाते हैं और सब मिलकर खुशी का जश्न मनाते हैं। लोग कहानी सुनकर हैरान हैं कि किस तरह गुलाम ने ताकत के खिलाफ सच और मोहब्बत का इंतखाब किया। लाजो और दीजी भी बाहर आकर सबके सामने आ जाते हैं। दीजी कहता है, आज मैंने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया, क्योंकि गुलाम ने सच का साथ दिया। लाजो अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, ये दिन देखना मेरे लिए खुशी से कम नहीं। गुलाम, तुमने सब कुछ बदल दिया। बादशाह अब मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है, मगर इस शिकस्त से वो सीखता है। वो एक नया इंसान बनने का फैसला करता है। इसकी नज़र में नफरत की जगह अब समझ, बोझ और पछतावा आ गया है। सुंदरी और गुलाम की जिंदगी अब एक नया आगाज ले चुकी है। वो दोनों मिलकर न सिर्फ अपने खानदान को संभालते हैं, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी मिसाल कायम करते हैं। कहानी का आखिरी मंजर कुछ यूं है। गुलाम और सुंदरी सहन में खड़े हैं, सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है और हवा में मोहब्बत और अमन की खुशबू है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। गुलाम बोलता है, आज से हम आज़ादी के साथ जिगे, मोहब्बत और सच के साथ। सुंदरी जवाब देती है, हाँ गुलाम, हमने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया, और यही हमारी असल फतेह है। और यूं गुलाम, बादशाह, सुंदरी की कहानी एक यादगार अंजाम तक पहुंचती है, जहां सच, मोहब्बत और कुर्बानी ने हर जुल्म और ताकत को शिकस्त दी।
बादशाह की शिकस्त के बाद हवेली में सुकून की फिजा कायम होती है, मगर यह सुकून आर्जी साबित होने वाला है। बादशाह अब खामोशी से अपनी अगली चाल सोच रहा है। वो जानता है कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि जहानत और साजिश से भी गुलाम और सुंदरी को काबू किया जा सकता है। सुबह के वक्त बादशाह अपने करीबी वफादारों के साथ मुलाकात करता है। वो कहता है, गुलाम और सुंदरी ने आज तक मुझसे बचा लिया, मगर अब मेरी मंसूबा बंदी से कोई नहीं बच सकेगा। इस दौरान गुलाम और सुंदरी हवेली के सहन में बैठे हैं, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत पर बात कर रहे हैं। गुलाम कहता है, हमने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया, मगर मैं जानता हूँ अगर बादशाह ने दोबारा हमला किया तो हमें हर चीज का सामना करना होगा। सुंदरी पुरसुकून लहजे में जवाब देती है, हम दोनों साथ हैं गुलाम, खौफ का मतलब ही नहीं। अगर वो दोबारा आए तो हम इसे इसके अपने हथकंडों से शिकस्त देंगे। इसी वक्त बादशाह की तरफ से एक खुफिया हमला होता है। कुछ वफादार गुलाम के घर के करीब आकर साजिश शुरू कर देते हैं। गुलाम फौरन एहसास करता है कि कोई खतरा करीब है। वो सुंदरी को पकड़कर महफूज जगह पर ले जाता है। गुलाम अपने जहन में मंसूबा बनाता है, अब वक्त है कि हम ताकत के बगैर अक्ल और हिकमत से इसे शिकस्त दे। बादशाह की बीच में साजिश के बावजूद गुलाम की हिफाजत का फैसला वाज़ेह है। वो सुंदरी से कहता है, हमें अब खामोशी और चालाकी से काम लेना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई नुकसान हो। उधर बादशाह बेसब्र है। वो सोचता है कि गुलाम की अक्ल इसे काबू से बाहर कर रही है और अब वो ज्यादा खतरनाक तरीके अपनाने का फैसला करता है। इसकी आंखों में इंतकाम की चमक है। वो समझते हैं कि सच और मोहब्बत से सब कुछ जीत लिया, मगर आज वो गलत साबित होंगे। गुलाम और सुंदरी छपकर प्लान बनाते हैं। गुलाम कहता है, हमें बादशाह के वफादारों का पता लगाना होगा और उनके मंसूबे नाकाम करने होंगे। सुंदरी चुपके से मुस्कुरा कर कहती है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। इस दौरान बादशाह अपनी चाल चला रहा है, मगर गुलाम और सुंदरी हर हरकत का अंदाजा लगा लेते हैं। ये सीक्वेंस पूरे 10 मिनट तक खींचता है, जहां दुश्मन की साजिश, गुलाम की हिकमत और सुंदरी की हिम्मत एक साथ मंजर आम पर आती है। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर पहुंचती है। बादशाह को अंदाजा होता है कि सिर्फ ताकत से कुछ हासिल नहीं होगा, और गुलाम को यह समझ आता है कि मोहब्बत और हिकमत ही हकीकी हथियार है। सुबह की हल्की रोशनी हवेली के सहन में पड़ रही है। सुंदरी खामोशी से सहन में कदम रखती है, मगर इसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि बहादुरी और एतमाद है। वो जानती है कि आज का दिन इसकी और गुलाम की जिंदगी का सबसे अहम दिन है। गुलाम इसके करीब आकर कहता है, सुंदरी, आज तुम्हारी बहादुरी सबसे बड़ी हथियार साबित होगी। बस साथ रहो और हर कदम पर अपना दिमाग इस्तेमाल करो। सुंदरी मुस्कुरा कर जवाब देती है, गुलाम, तुम्हारे साथ हूँ। आज जो भी हो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, तुम्हारी हिफाजत करूंगी और इस जुल्म का खात्मा करूंगी जो बादशाह ने हमारे लिए तैयार किया है। इस दौरान बादशाह अपनी कोठरी में अपनी नाकामी पर गौर कर रहा है। इसके वफादार अब भी मंसूबा बंदी कर रहे हैं, मगर सुंदरी और गुलाम की होशियारी उन्हें पहले ही पछा रही है। सुंदरी एक दिमागी हिकमत अमली अपनाती है। वो बादशाह के वफादारों को उलझाने के लिए छोटे छोटे इशारे और भटकाने वाले रास्ते इस्तेमाल करती है। गुलाम हैरान होता है, सुंदरी, तुम वाकई हैरत अंगेज हो। तुमने हर कदम पहले से सोच लिया। सुंदरी जवाब देती है, हमने हमेशा सच और हिकमत को हथियार बनाया है गुलाम, आज भी यही काम आएगा। बादशाह के वफादार उलझते हैं और एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। सुंदरी और गुलाम चुपके से आगे बढ़ते हैं और सहन के मरकजी दरवाजे तक पहुंचते हैं। इस लम्हे बादशाह खुद सहन में आ जाता है। वो तलवार उठाए हुए है, मगर सुंदरी इसके सामने खड़ी होती है। वो खौफजदा नहीं बल्कि मजबूत और पुरेतमाद है। बादशाह खुरवता है, तुम लोग मेरे खेल को कैसे जीत गए? तुम्हारी हिम्मत कहाँ से आई? सुंदरी साफ और बुलंद आवाज में जवाब देती है, हमेशा याद रखो बादशाह, ताकत सिर्फ कब्जे से नहीं बल्कि मोहब्बत और हिकमत से चलती है, और आज तुम्हारे जुल्म के सामने मोहब्बत ने जीत हासिल की है। गुलाम सुंदरी के साथ खड़ा होता है और बादशाह को घूरता है। वो कहता है, अब वक्त है कि तुम अपनी गलतियों का एतराफ करो। ये हवेली तुम्हारा कब्जा नहीं रही और न ही जुल्म की जगह बनेगी। बादशाह गुस्से में सर हिलाता है, मगर वो जानता है कि अब वो अकेला है। इसके वफादार अब भी हिचकिचाहट का शिकार है। बादशाह खामोश हो जाता है और पहली बार इसके चेहरे पर आजिजी और शिकस्त की झलक नजर आती है। सुंदरी गुलाम के करीब आकर मुस्कुरा देती है, गुलाम, आज हमने सब कुछ हासिल किया, आजादी, मोहब्बत और इंसाफ। गुलाम जवाब देता है, हाँ सुंदरी, और ये सब तुम्हारी बहादुरी और हिकमत की वजह से मुमकिन हुआ। तुमने न सिर्फ अपने आप को बल्कि हमें भी बचाया। गांव वाले और खानदान के अफराद भी सहन में आ जाते हैं। वो सुंदरी और गुलाम को देखकर खुशी से तालियां बजाते हैं। लाजो और दीजी भी आकर सुंदरी को गिले लगाते हैं। सुंदरी, तुमने सबको सबक सिखा दिया। आज से ये घर सिर्फ इंसाफ, मोहब्बत और हिकमत का मरकज है। बादशाह तन्हा सहन से बाहर निकलता है। वो जानता है कि अब ना इक्तिदार इसके लिए रहा, ना खौफ का मकाम। इसकी शिकस्त मुकम्मल है और गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत और हिकमत ने हर जुल्म को शिकस्त दी है। सुंदरी और गुलाम अब सहन के दरमियान खड़े हैं। सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है और हवा में मोहब्बत और अमन की खुशबू है। गुलाम बोलता है, आज से हम जिंदगी खुद चुनेंगे, मोहब्बत और हिकमत के साथ।